کوئی کتنا ہی بڑا ترم خان ہو نہیں بچے گا، وزارتوں کے لیے اپنی قبریں خراب نہیں کریں گے۔ سانحہ پمز کی شفاف تحقیقات کے مطالبے پر وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا جواب، بولے کوئی ملوث شخص نہیں بچے گا، افسران کو لائن حاضر کریں گے، کوئی رکن پارلیمنٹ سفارش نہ کرے، کمیٹیوں تک معاملہ محدود نہ کریں، موجودہ نظام گل سڑ چکا، روزانہ 1300 سے زائد بچے مر رہے ہیں، سالانہ 11,000 سے زائد خواتین دوران زچگی جاں بحق ہوتی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا حکومتی کمیٹی پر عدم اعتماد۔ سینٹ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجر ناصر عباس نے سانحہ پمز کو قتل قرار دے دیا، کہا یہ واقعہ غفلت نہیں قتل ہے۔ علی ظفر نے کہا سانحہ پمز پر اپوزیشن کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی جائے، اسپتال حکومت کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں۔ شیری رحمان کی کڑی تنقید، کہا کہ ان کمیٹیوں میں سب لوگ ایک دوسرے کی تحقیقات کر رہے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ انخلا کے راستے کھلے تھے، سب راستے بند تھے، عملہ سو رہا تھا۔ راجہ پرویز اشرف کا حقائق عوام کے سامنے لانے پر زور۔ پارلیمنٹ کا سانحہ پمز کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ، دونوں ایوانوں میں تحقیقاتی کمیٹی بنانے کی تحریکیں منظور، خصوصی کمیٹی بنانے کا مطالبہ اپوزیشن نے کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے انکوائری رپورٹ 7 دن میں آئے گی، رپورٹ کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی، سیاست نہ کریں، ٹھوس تجاویز دیں۔ سزاؤں سے نظام ٹھیک نہیں ہوگا، سرکاری اسپتالوں میں حکام کا علاج ہی حل ہے۔ سینیٹر پرویز رشید کی ملازمین کے بچوں کے لیے سرکاری اسکول لازم کرنے کی تجویز، بولے اس اقدام سے سرکاری اسپتال اور اسکول خود بخود بہتر ہو جائیں گے، سرکاری اسپتالوں میں CMH کا نظام نافذ کیا جائے۔ پمز اسپتال میں آگ بجھانے کے مناسب آلات نہیں تھے، تالے بھی لگے تھے، دیواریں توڑ کر ریسکیو ٹیم نرسری میں داخل ہوئی، اسپتال عملہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے غیر تربیت یافتہ نکلا۔ انکوائری کمیٹی نے فائر بریگیڈ کی ٹائم لائن بھی جانچ لی، کمیٹی 5 روز میں تفصیلی رپورٹ دے گی۔ مکہ دفاعی معاہدہ 3 ملکوں کو مزید قریب لایا، خطے میں اتحاد اور امن کا پیغام گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی وزیر زراعت سے ملاقات کے دوران گفتگو، وزیر اعظم نے اقتصادی اور زرعی تعاون بڑھانے پر زور دیا، کہا زرعی ماہرین کا وفد جلد ریاض جائے گا، اقتصادی اور زرعی تعاون بڑھانا چاہیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے سعودی وزیر زراعت کی ملاقات، ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعاون پر اہم تبادلہ خیال کیا گیا، اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، سعودی وزیر کی علاقائی امن کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف، زراعت اور ماحولیاتی پائیداری میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مکہ معاہدے میں شمولیت کی دعوت ملی تو مثبت انداز میں غور کریں گے، بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کا پارلیمنٹ میں بیان، کہا مکہ معاہدے پر کسی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے، مکہ معاہدہ مسلم ممالک کا داخلی معاملہ ہے، معاہدہ مشترکہ دفاعی نظام بن سکتا ہے۔ دریائے سندھ پر بھارت کے اقدامات کو جنگی اقدام سمجھا جائے گا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات میں ایران اور افغانستان کے حوالے سے بھی بات ہوئی، پاکستان پرامن اور مستحکم افغانستان کا خواہاں ہے۔ بیرسٹر افتخار گیلانی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب، حلف اٹھا لیا، 30 ووٹ لے کر قائد ایوان بنے۔ پیپلز پارٹی کے مختار عباسی کو 14 ووٹ ملے۔ شاہ غلام قادر اجلاس سے غیر حاضر، راجہ فاروق حیدر کو گیلانی خود گھر سے لے کر آئے۔ افتخار گیلانی کا آزاد کشمیر کی مثالی ترقی کا عزم، کہا ہم سب مل کر چلیں گے، ایک ایسا آزاد کشمیر بنائیں گے جس کی مثال پوری دنیا دے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد۔
इफ्तार गिलानी का वकालत से वजारत उज़्मा तक का सियासी सफ़र। 2016 से 2021 तक वज़ीर तालीम रहे। तालीमी इस्लाहात में नुमायां किरदार अदा किया। आम इंतखाबात में शिकस्त के बाद मखसूस नशिस्त से असम्बली में वापसी हुई। सिर्फ 2 रोज़ बाद पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद किया। अब मजीद नरमी या शराफत नहीं, ट्रंप की एक और जारहाना पोस्ट। सियासी और अवामी हलकों में हलचल। अमरीकी सदर जदीद राइफल थामे जंग से मुतासरा इलाके में खड़े दिखाई दिए। सूट और चश्मे में ट्रंप की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। ट्रंप इससे कबल भी ईरान के खिलाफ ऐसी ही जारहाना पोस्ट शेयर कर चुके हैं। ईरानी मईशत तबाह कर देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेस्नेट की फिर धमकी। कहा नाकाबंदी और इक़्तिसादी ऑपरेशन जारी है। अमेरिका ने 14 रोज़ में 130 मिलियन बैरल तेल आबना हरमुज़ से गुजारा। कोई ईरानी जहाज नाकाबंदी नहीं तोड़ सका। हरमुज़ कॉरिडोर के लिए शराइत की फहरिस्त तैयार हो गई। ओमान के साथ बहरी गुजरगाह पर इत्तफाक। कॉरिडोर कुछ ईरानी कुछ ओमानी समंदरी हदूद में होगा। सरबराह ईरानी कौमी सलामती काउंसिल मोहसिन रज़ाई ने वाज़ह कर दिया। कहते हैं अमेरिका शराइत माने तो जहाज महसूस रास्ते से गुजर सकेंगे। ट्रंप के बेटे के कत्ल की साजिश का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। नौजवान हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िया अपनाएं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने नौजवानों में तालीम, हुनर की तरक्की और कारोबारी सलाहियत की अहमियत उजागर की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने बढ़ती हुई गैर यकीनी दुनिया में नौजवानों के बामानी किरदार की अहमियत उजागर की। मुख्तलिफ ममालिक के तलबा पर मुश्तमिल हार्वर्ड वफ्द का पाकिस्तान का तजुर्बा शानदार करार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शब कदर सेंटर का दौरा। राइट फोर्स की खुसूसी तरबीती मशकों का मुआयना। हजूम कंट्रोल और हसास मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की तरबियत का जायजा। पुरतशद्दुद सूरत हाल से निमटने और अमन व अमान बरकरार रखने की अमली मशकें भी हुई। मोहसिन नकवी ने अहलकारों की पेशावराना तरबियत को सराहा। मीर रजा कत्ल से पहले 20 से 22 घंटे तक मुख्फी था। वकील जबरान नासिर का दावा, केस और शवाहिद खराब करने वाले अफसरान को ओहदे से हटाने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा जुडिशल कमीशन सरबराह की जानिब से कार्रवाई पब्लिक करना अच्छी काविश है। ऐसे केसेस में अदालत मुदाखलत के बाद JIT बनानी चाहिए। वजारत दाखिला का बड़ा फैसला। जराइम पेशा अफराद का मुल्कगीर सेंट्रल डेटाबेस बनाने का फैसला। अब कोई मुजरिम बच नहीं सकेगा। दहशतगर्द, मफरूर और इश्तिहारी कानून के शिकंजे में आएंगे। पुलिस और FIA का डेटा यकजा किया जाएगा। वफाकी क्राइम लिस्ट की तैयारी शुरू। नाकाबिल जमानत जराइम में मुलव्वस अफराद भी शामिल होंगे। कलअदम तंजीमों के अरकान, दहशतगर्दों के सहूलतकारों का डेटा भी लिस्ट का हिस्सा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन में अहम मुलाकातें। पंजाब को मसनूई जहानत से लेस करने पर इत्तफाक। 1000 पाकिस्तानी नौजवानों को तरबियत देने की तजवीज़। मरियम नवाज की हवावी कंपनी को नवाज शरीफ IT सिटी में सरमायाकारी की दावत। मौसर सरकारी एंटरप्राइज कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म पर भी बातचीत हुई। मोहसिन नकवी का विजन। इस्लामाबाद तजावुजात से पाक करने के लिए जीरो टॉलरेंस ऑपरेशन तेज। अरबों रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई। सैदपुर, नूरपुर शाह एक्सप्रेसवे और तरनोल समेत शहर भर में बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी। गैर कानूनी तामीरात, खोखों, ग्रीन बेल्ट्स और सरकारी अराजी पर कब्जों के खिलाफ सख्त एक्शन। फुटपाथ और गुजरगाहें बहाल। ट्रैफिक की रवानी बेहतर। शहरी माहौल में बेहतरी आने लगी। मोहसिन नकवी की क़यादत में इस्लामाबाद को साफ, सरसब्ज, महफूज और माहौल दोस्त शहर बनाने का अज़्म। हिमालयाई ग्लेशियर पिघलने से नेपाल, चीन में तबाही। आबादियां मिट गई। शहरों के नक्शे बदल गए। हलाकतों की तादाद 547 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3700 से ज्यादा अफराद बचा लिए गए। नेपाल में 977 और चीन में 558 अफराद ताहाल लापता। तिब्बत में लैंडस्लाइडिंग से बनने वाली झील में 25 लाख मौकत मीटर से ज्यादा पानी जमा।
बंद टूटने से नेपाल में हाई अलर्ट, भारत में भी शदीद सैलाब का खतरा पैदा हो गया। अमेरिका कनाडा कशीदगी में इजाफा, ट्रंप ने झील ओंटारियो का नाम बदलने का हुक्म दे दिया। ट्रंप का झील ओंटारियो का नाम झील अमेरिका रखने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा खलीज मेक्सिको और नहर के नाम बदल दिए, अब सिर्फ समुंदर बाकी है। झील ओंटारियो अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क और कनाडा के सूबे ओंटारियो के दरमियान वाक़ है। न्यूयॉर्क के गवर्नर का ट्रंप का फैसला मानने से इनकार। बर्तानिया के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर हमला, 87 लाख सार्फिन का डाटा चोरी। मैनचेस्टर, स्टैंटसिस और ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट्स मुतासर। ईमेल्स, फोन नंबर्स, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और पोस्ट को डी हैकर्स के हाथ लग गई। पार्किंग, लाउंज और फास्ट ट्रैक बुकिंग का डाटा भी मुतासर। एयरपोर्ट्स के वाईफाई सार्फिन भी साइबर हमले से महफूज न रहे। लॉर्ड्स टेस्ट में भी पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप, टॉप और मिडिल ऑर्डर फिर धोखा दे गया। अजान ओवैस के अलावा कोई खिलाड़ी न चल सका। कप्तान बाबर आजम 8, शान मसूद 1, सऊद शकील 16, अब्दुल्ला शफीक 5 रन ही बना सके। इससे पहले इंग्लैंड की टीम 290 रन बनाकर आउट हो गई। अब्बास ने 4 और मोहम्मद अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जुज़वी चांद ग्रहण का शानदार नज़ारा। 27 और 28 अगस्त के दरमियानी शब चांद का 96% हिस्सा जमीन के साए में छुप गया। अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, मेक्सिको, बोलिविया समेत अफ्रीका और यूरोप में शहरियों ने फलकियाती मंजर देखा। लाहौर में बादल बरसने को तैयार, पंजाब में मॉनसून के 8वें स्पेल का अलर्ट जारी। कल से 5 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब भर में अब्र रहमत बरसेगा। बरसाती नालों में तुगयानी का अंदेशा। पीटीएमए का सेहत, आबपाशी और लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर महकमों को अलर्ट। रक्षाबंधन के रंग, सिंध समेत पाकिस्तान भर में हिंदू बरादरी खुशियों में डूब गई। बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर मोहब्बत की राखी बांधी, सलामती और खुशहाली की दुआएं मांगी। थरपारकर में मजहबी हम आहंगी की दिलकश तस्वीर। हिंदू बहनों ने मुसलमान नौजवानों को भी राखी बांधकर भाई बनाया।